Hello students, welcome to Class Excellence. I am here with another chapter of class 10 Science, a very important chapter, that is how do organisms reproduce. Okay, so this is very important chapter as per your class 10th science board exams, and many questions, mainly diagram based questions and conceptual questions are being asked from this chapter. That is, without wasting much time, let's start with the chapter. So at the end of this chapter you will be able to understand why reproduction is essential for all living organisms. You will describe how reproduction brings variation in organisms. You will appreciate the role of reproduction in survival and evolution. So these are the chapter outcomes. Okay, you can just go through this, and the real life applications, that is these real life applications will help you solve the case study based questions which are asked in the board exams. Okay, and remember, case study questions now they have become very important. Mainly around 50 to 60% weightage is given to your case study questions, MCQ questions and all. Okay, so the according from this real life applications you can just understand how case study questions will occur in the exam paper. See, introduction to reproduction. Let's see what is the meaning of reproduction first. Reproduction is a biological process by which a living organisms they produce their younger ones or new individuals, or also called as offsprings of their own kind. It is a process where the living organisms they produce their younger ones, and this reproduction ensures that there is a continuity of the species from one generation to another generation on the earth. Okay, so characteristics या features of reproduction क्या होता है देखते हैं. देखो, reproduction helps in producing new individuals which are similar to the parents. Okay, थोड़े रेप्लिका रहते हैं, थोड़े सिमिलर रहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग. वो अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए किधर रहता है, हमने ऑलरेडी पता है हमें किधर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, सेल के न्यूक्लियस में रहता है. ओके, डीएनए इट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल. ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एंड दिस रिप्रोडक्शन एंश्योर्स देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड इट प्रिवेंट्स द स्पीसीज फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मतलब खत्म नहीं होना चाहिए. ये प्रिवेंट करने के लिए ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, इट एंश्योर्स देयर इज अ continuity of life, and this may be asexual or sexual type. Okay, asexual matlab a single parent is involved in that type of reproduction, whereas in sexual reproduction two parents are involved. So why there is a need of reproduction, why there is a need, first हमारा होगा since there should be a continuity of species. क्यों होना चाहिए, because there should not be any extinction of the species, खत्म नहीं होना चाहिए. So this continuity of species helps in producing new individuals and maintaining the existence of new species on the earth. Okay, and continuity of life आगे चलते रहेगा reproduction के through. Next point है growth of population. This reproduction increases the number of individuals in a species. Growth मतलब क्या है, बार बार reproduce करके number of individuals increase करता है ये species में. Next is survival. It helps, this reproduction helps species to survive in the changing environment. environment change होते रहता है. देखो, समर विंटर ये तुम्हारे अकॉर्डिंग टू सीजन बोल सकते हैं. जैसे कि तुम लोग अभी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाओगे तो उधर भी डिफरेंट वेदर कंडीशंस के वजह से चेंजेस हो सकता है. सो देयर शुड बी अ बेटर एडेप्टेशन. ओके, एडेप्ट मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग एडेप्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग. फॉर सर्वाइवल दिस रिप्रोडक्शन इज necessary.
Next is evolution and variation. Reproduction creates variations in the offsprings which are essential for evolution. मतलब evolve होने के लिए. In simple words we can say reproduction is nature's way of making new life, creating new life and ensuring that life continues on the earth. Okay, this is why there is a need of reproduction. So why do organisms reproduce? Let us see. So reproduction, it is the fundamental process, एक natural process है by which living organisms they produce their younger ones of own kind. Okay, importance क्या है देखो, reproduction is essential for continuity of life on the earth, ये हमने देखा, and this ensures that production of new individuals of the same species. There is continuity of the species which helps in maintaining the population of species from one generation to next. For survival, that is reproduction helps in survival of the species. Variation, ये बहुत important है. Okay, variation, this is important. Reproduction, especially that is sexual reproduction, it introduces variations among the individuals. देखो हम लोग हमारे पेरेंट्स के रेप्लिका नहीं है, सेम टू सेम कार्बन कॉपी तो नहीं है, क्या है, कुछ वेरिएशंस है हमारे अंदर. ओके, से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन mainly introduces variations in the individuals, and these variations they help species to adapt to the changes in the environment. हर एक changes जो भी होते हैं, physical changes जो भी होते हैं, temperature, weather, कुछ भी होने दो, okay, climatic changes, वो उधर उस जगह पे adapt होने के लिए ये variation help करता है. समझ में आया? जो भी है, I took the example of humans. Okay, it can be in case of plants also. And reproduction ensures the survival, continuity and growth of species by producing new individuals and creating variations. DNA copying क्या है देखो, DNA मतलब deoxyribonucleic acid, याद रखो, deoxyribonucleic acid is the hereditary material, genetic material. Okay, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल करके भी बोल सकते हैं. It is present in the nucleus of all the existing living cells, whereas except RBC. एक्सेप्शन केस याद रखो, DNA किधर प्रेजेंट नहीं है, कौन से सेल में, एक्सेप्ट RBC cell में. And this DNA it carries the genetic information in the form of genes. इसका genetic material किस form में लेके जाता है, genes. जो तुम लोग पहनते हो वो genes material नहीं, that is GEANS, genes होता है. ओके, whereas ये क्या है, genes है, GENES, याद रखो. So DNA replication is the process of making an exact copy of DNA before the cell division. Okay, cell division होने से पहले जो exact copy, same replica जो बनता है, exact copy मतलब क्या बोल सकते हैं तुम लोग, replica जो बनता है DNA का, उसको क्या बोलते हैं, DNA replication बोलते हैं. देखो replica मतलब replication. Okay, it occurs in the nucleus during the S phase, that is synthesis phase of the interphase. Cell division का interphase में ये इधर होता है, synthesis phase में. Okay, and the two strands of DNA they separate and each strand act as the template to form a new complementary strand. इधर दिख रहा है ना, ये एक strand है, ये एक strand है, दो strand रहता है DNA को. Okay, ऐसे figure है. So in between sugar deoxyribo, sugar टेम्पलेट से बनाया है स्ट्रैंड. ओके, एंड बीच में इधर फॉस्फेट ग्रुप लगा है, फॉस्फेट ग्रुप है, इधर नाइट्रोजनस बेस है, एंड बेस पेयर्स होते हैं ATGC ऐसे बेस पेयर. ए मतलब एडेनाइन. ओके, उतना डिटेल में नहीं चाहिए. टी मतलब थाइमाइन, थाइमिन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन. ओके, ये होता है तुम्हारा ATGC. दे आर
बेस पेयर्स बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स. So what is the role of this DNA in reproduction? This DNA ensures that each new cell or organism gets a complete set of genetic information. क्या मिलता है हमें? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जो भी हमारे पेरेंट्स के अंदर, ह्यूमंस के केस में मैं लेती हूँ, ओके, जो भी पेरेंट्स के अंदर है वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. Next, DNA helps in growth, repair and replacement of cells, which maintains the continuity of characters from parents to offspring and provides the basis for variations during the reproduction. देखा होगा ना तुमने बहुत सारे मूवीज़ में DNA टेस्टिंग बोलते हैं. क्यों DNA टेस्टिंग करते हैं? Because to check whether those offspring or those individuals are reproduced from their parents or not. वो उसको ही होता है DNA टेस्टिंग बोलते हैं हम लोग, DNA चेक करने का. ओके, सो ये जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है, विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. याद रखो, ये है स्टेप्स ऑफ DNA रेप्लिकेशन. ये तुम लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही दिया है. देखो, इफ़ यू वांट फॉर नीट पर्पस एंड ऑल, अनवाइंडिंग, स्ट्रैंड सेपरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन. देखो, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होता है एंड 2 आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल्स फाइनली फॉर्म होते हैं. एंड ईच न्यू DNA मॉलिक्यूल हैज़ 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं हम लोग इसको. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म होता है. और एक क्या होता है, जो ओल्ड है वो ही रहता है सेम. एंड दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. क्या बोलते हैं इसको? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. मतलब एक पहले का ही रहता है, एक नया फॉर्म होता है. इसके वजह से हम लोग सेम रेप्लिका नहीं रहते हैं हमारे पेरेंट्स के. ओके, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही हम लोग सेम नहीं रहते हैं, थोड़ा कुछ चेंजेस आ जाते हैं ऑटोमेटिक. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के वजह से कुछ चेंजेस रहता है हमारे अंदर. नेक्स्ट देखो क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है हर साल. मैंने देखा है, नोटिस किया है, एवरी ईयर इन द बोर्ड एग्जाम और इन योर हाफ ईयरली एग्जाम्स द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज वेरिएशन. व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? देखो, वेरिएशन मतलब क्या है? इट मीन्स द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. एक ही स्पीसीज के रहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस लेंगे तो ह्यूमंस, बट सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं है, एक जैसे दिखते नहीं है. फेशियल चेंजेस है, कुछ ना कुछ चेंजेस है, कलर है, कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन रहते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन रहते हैं. ओके, हेयर वाइज देखेंगे तो वो चेंजेस रहता है, ईयर लोब्स चेंजेस रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस है. इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएशन बोलते हैं. वेरिएशन इन द सेम स्पीसीज. एडवांटेजेस क्या है देखो वेरिएशन का? इट हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. एडेप्टेशन के लिए हेल्प करता है. एक इसका क्या है? फॉर एडेप्टेशन. ओके, फॉर एडेप्टेशन याद रखो. हाँ, इधर दिया है देखो, इट हेल्प्स इन बेटर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट. एक है. नेक्स्ट, इट इज बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन, कि स्पीसीज कैसे इवॉल्व हुआ है. ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैसे इवॉल्व हुआ है, ये वेरिएशन दिखाता है. एंड इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ सम इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज एज वेल. तभी कुछ ज़्यादा चांसेस रहता है सर्वाइव होने का नेचुरल कैलामिटीज़ में. ओके, ये वेरिएशन के कारण. दिस वेरिएशन इज नेचर्स वे ऑफ प्रिपेयरिंग लाइफ फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ओके, ये इसमें हमारा कुछ हाथ नहीं है, नेचर है, ऑटोमेटिकली होता है, नेचुरली होता है. सो व्हाट इज एवोल्यूशन? वेरिएशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन. ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूजफुल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. देखो, क्या जो यूजफुल वेरिएशंस रहता है वो एडेप्ट हो जाते हैं, सर्वाइव हो जाते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ में, एंड फाइनली दे रिप्रोड्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दीज वेरिएशंस दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. इधर देखो, मैंने
इधर वेरिएशन दिखा है. फाइनली ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए थे, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं. कैसे इवॉल्व हुए थे, कुछ वेरिएशन के कारण. ओके, एंड फाइनली वी आर इन दिस स्टेज टुडे. सो एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिया है देखो वेरिएशन का. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स इन प्लांट्स. ये प्लांट्स के केस में वेरिएशन इन हाइट, स्किन कलर, ओके, कॉम्प्लेक्शन, आई कलर इन ह्यूमंस, ये होता है. ये भी वेरिएशन है, इधर दिख रहा है ना, फिगर में दिया है. वेरिएशन इन बीक साइज एंड शेप इन द बर्ड्स, दैट इज फिंचेस, हेल्प्स देम टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ये वेरिएशन देखो इधर. एंड वेरिएशन इन रेजिस्टेंस टू डिजीज इन सर्टन इंडिविजुअल्स एज वेल. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. हाँ, मैंने इंक्लूड किया है देखो इधर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBSE 2020 बोर्ड एग्जाम में आया था. व्हाई इज वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. क्यों वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स सर्टन इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीसीज टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट, टू अडेप्ट इन द सर्टन चेंजिंग एनवायरमेंट एंड नेचुरल कैलामिटीज, एंड इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल and helps in evolution of new species. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये. ओके, अभी क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन के फॉर्म में भी दे सकते हैं वो लोग. पहले पैटर्न में केस स्टडी कुछ ज़्यादा नहीं था, अभी 4-5 ईयर्स से सेम चल रहा है पैटर्न, बट उसके पहले नहीं था. ओके, सो अभी कुछ केस स्टडी क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन के फॉर्म में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड actually. Next is coming to types of reproduction. See, there are 2 types of reproduction. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. Asexual मतलब क्या है? Single parent. कितना? One parent. Only one parent is involved in the asexual reproduction. Whereas sexual reproduction में कितने हैं? 2 parents are involved. ये difference है इसका. Okay, first difference है. नेक्स्ट कंपैरिजन टेबल हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है करके. देखो, as per number of parents, only one parent is involved in asexual. In sexual reproduction, 2 parents are involved. As per gamete formation, there is no formation of gamete in a asexual reproduction, whereas sexual reproduction में gametes are formed. Okay, and fertilization, it does not take place in the asexual mode of reproduction, does not occur. मैंने हाईलाइट किया है देखो पॉइंट्स डिफरेंस दिखाने के लिए कि कौन सा क्या है करके. किसमें? फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whereas fertilization do occurs in sexual reproduction. Offsprings are genetically identical. इधर क्या रहता है? सेम रेप्लिका रहता है उसके पेरेंट्स का. रेप्लिका, डुप्लीकेट कॉपीज. रेप्लिका मतलब ओके, एग्जैक्टली जैसे पेरेंट्स है सिमिलरली वैसे ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं, आइडेंटिकल. एग्जैक्ट कॉपीज बोल सकते हो तुम लोग इसमें असेक्सुअल में. whereas कुछ वेरिएशन दिखता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड द ऑफस्प्रिंग दे आर नॉट आइडेंटिकल. ओके, नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज जनरली रैपिड. बहुत फास्ट होता है. इट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. क्या बोल सकते हो तुम लोग? शॉर्ट ड्यूरेशन में टेक प्लेस होता है. whereas सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जनरली स्लो, इट टेक्स मोर टाइम लेता है ये. ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग 1 by 1 सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे भी, स्टडी करेंगे विथ फिगर्स एंड ऑल. ओके, विथ डायग्राम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. एग्जाम्पल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बाइनरी फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड ऑल. ओके, वेयरएज तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के केस में फ्लावरिंग इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. वेरिएशंस देखेंगे तो ऑलरेडी हमें पता है कि इधर नो वेरिएशन इन द असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयरएज वेरिएशन टेक्स प्लेस और अकर्स इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. याद रखो.
So asexual reproduction, it helps in quick increase in the number of offspring. ओके याद रखो ये वाला क्विक इंक्रीज बहुत रैपिडली होता है, जल्दी जल्दी होता है. नेक्स्ट आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग asexual reproduction. So here in my this lecture, here first lecture, I will be just covering the asexual type of reproduction, variation and what is reproduction and all. Okay, and please do continue to watch my second part lecture also, which I will deal with, which will be dealt with sexual mode of reproduction in that part. Okay, yaad rakho. Also watch that video and the description, the link will be provided in the description box. Next see asexual mode of reproduction. It is a type of reproduction, already हमें पता चला, where only single parent, one parent या single parent is involved and no gametes are formed. क्या है? Gametes are not formed. कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज देखेंगे, फीचर्स वाइज देखेंगे तो हमें पता है वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स टेक प्लेस नहीं होते हैं, फ्यूजन नहीं होता है इधर. न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. कैसे प्रोड्यूस होता है? तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है तो बाय माइटोसिस. बाय हाउ? माइटोसिस. याद रखो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी है. ओके, डुप्लीकेट्स है. दे अकर इन मेनली यूनिसेलुलर एज वेल एज सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस और रैपिड प्रोसेस. एग्जाम्पल्स मैंने दिए. अमीबा, अमीबा के केस में हम लोग ये रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. ईस्ट के केस में बडिंग, हाइड्रा के केस में बडिंग, पोटैटो के केस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, स्पाइरोगायरा के केस में फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं. ओके, वन बाय वन हम लोग देखेंगे डिटेल में क्या है करके. एडवांटेजेस क्या है देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. एडवांटेज फर्स्ट ये है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. फर्स्ट है. सेकेंड, इट इज़ अ फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस, फास्ट टेक प्लेस होता है. लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. ओके, बहुत कम ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगे तुम्हें. एंड नो एनर्जी इज वेस्टेड इन फाइंडिंग अ मेट. मेट मतलब पार्टनर, पार्टनर फाइंड करने के लिए इधर एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. एंड देयर इट इज़ अ यूजफुल फॉर सर्वाइवल इन स्टेबल एनवायरमेंट्स. को स्टेबल एनवायरमेंट्स में इसको हम लोग इसके थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू सर्वाइव कर सकते हैं. वेयरएज डिसएडवांटेज इसका क्या है देखो. नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड, no variation is seen. Okay, and offspring they are identical and they lack adaptability. adaptation बहुत कम रहता है तो थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उतना ही सर्वाइव होते हैं. ओके, इफ द एनवायरमेंट चेंजेस सडनली ऑल द ऑफस्प्रिंग दे मे गेट अफेक्टेड. automatically they may die also, we can say, and it does not lead to any evolution. समझ में आया? ये है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जस्ट गो थ्रू दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. See, asexual reproduction helps in quick increase in the number of organisms, but it does not create any variation. Since it does not create any variation, there will be no adaptation. No adaptation मतलब the species cannot survive. Species cannot survive. Species can't survive. याद रखो ये होता है. ओके, इसमें डिसएडवांटेज है ये. नेक्स्ट आते हैं फिजन, जो हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा अभी, अमीबा का. ओके, फिजन जो बोलते हैं एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction here in which the parent cell divides into two or more daughter cells. कितना? two or more daughter cells. याद रखो daughter cells मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सेल्स को हम लोग daughter cells बोलते हैं. ओके, सन सेल्स daughter cells ऐसे कुछ नहीं रहता है, एक ही रहता है daughter cells. याद रखो ये daughter मतलब क्या है, अभी किधर से आया करके मत बोलो, सन सेल्स भी रहेगा क्या करके. सो इसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स करके बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में.
एंड इट अकर्स मेनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फिजन मेनली किधर अकर होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. एंड व्हाट? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व हियर. देयर इज नो पार्टनर और देयर इज नो मेट हियर एंड नो एनर्जी इज वेस्टेड टू फाइंड दैट पार्टनर. सो इसमें दो आते हैं फिशन में. एक होता है तुम्हारा बाइनरी फिशन, दूसरा होता है तुम्हारा मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन क्या होता है? द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स. कितना? टू इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स, याद रखो. एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फिजन. ज़्यादातर ये अकर होता है फिजन के केस में. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये तीनों ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन टेक प्लेस होता है. ऐसे ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन के वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं. कौन से? अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. फिगर देखो मैंने इधर दिया है, देखो बाइनरी फिजन इन अमीबा. ये पेरेंट अमीबा है, बीच में इधर क्या है? ये न्यूक्लियस है जो दिख रहा है सेंटर में. ओके, ये न्यूक्लियस डिवाइड्स. ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में क्या होता है? फर्स्ट इधर जो सर्कल था ये क्या होता है? स्लोली ऐसे, ये इधर ऐसे दिखाना चाहिए था. ओके, ऐसे न्यूक्लियस ऐसे हो जाता है और इधर से ये कट होता है बाद में. इधर देखो ये कट हुआ है, गैप आया है इधर. नेक्स्ट इधर इधर ऐसे होता है. ओके, ये केस में ये साइटोप्लाज्म डिवाइड्स होता है. ये साइटोप्लाज्म है, इधर दो पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है. नेक्स्ट क्या होता है? टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, ये सेपरेट हो जाता है. ये इधर एक होता है, इधर एक होता है अमीबा का. अमीबा कैन टेक एनी शेप. ओके, याद रखो. तो फाइनली टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ये 4 नहीं है. ओके, 2 है. टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन, दैट इज अमीबा के केस में. दूसरा आता है मल्टीपल फिशन. देखो न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स रिपीटेडली. बार बार रिपीटेडली न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है टू फॉर्म मोर देन 2 daughter nuclei or many daughter nuclei. Then the cytoplasm divides to form many daughter cells. न्यूक्लियाई ज़्यादा फॉर्म हुआ है तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में इधर जैसे न्यूक्लियाई डिवाइड हुआ था, न्यूक्लियाई डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. सेम केस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होके मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम किधर अकर होता है? वो ऑर्गेनिज्म के नेम्स याद रखो क्योंकि केस स्टडी में ऐसे तुम्हें पूछते हैं. प्लाज्मोडियम है, ऐसे एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है. विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़? असेक्सुअल में कौन सा टाइप है? मल्टीपल फिशन. ऐसे. ओके, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ये कौन से ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस होता है? इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इज मलेरिया पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया. याद रखो. ओके, सो ऐसे भी पूछ सकते हैं. अ पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया शोज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर इट लीड्स टू मैनी डॉटर सेल्स. ऐसे विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़, ऐसे पूछ सकते हैं. ओके, ये केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं. सो तुम लोग फुल डीपली पढ़ना पड़ता है तुम लोगों को. बाई चांस ये कॉन्सेप्ट्स तुम लोग को मिस हो गया, अभी तुम्हें प्लाज्मोडियम क्या है वो पता ही नहीं है, तो तुम्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो मल्टीपल फिजन है, ये पता नहीं चलेगा. समझ में आया? सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. इफ वंस यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट देन डायरेक्टली यू कैन सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली. ओके, सो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. हियर आई हैव शोन द फिगर. दिस इज अ पेरेंट सेल. इन फर्स्ट केस nucleus will try to divide many times, and as the nucleus divides, what will happen? Cytoplasm will divide. Next, what will happen? Cytoplasm will divide to many daughter cells. Okay, finally
This is called as a multiple fission in plasmodium. Here again I have included here binary fission example comes amoeba, paramecium, bacteria. These are the organisms which show these binary fissions. याद रखो multiple fission कौन दिखाता है? Plasmodium क्या है? Malaria parasite which causes malaria. याद रखो. नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने इधर इंक्लूड किया है, प्रीवियस ईयर 2023 का है ये. ओके, नेम द टाइप ऑफ फिजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. मैनी करके पूछने से ही समझ में आया कौन सा है? मल्टीपल फिजन. कौन सा है? मल्टीपल फिजन करके समझ में आया. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, MCQ के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या केस स्टडी क्वेश्चन में 4 सेट बना के 4 मार्क्स का एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. 1 + 1 + 2 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. 3 क्वेश्चन उसका सब पार्ट्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू बाइनरी फिशन. देखो अभी सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिशन क्या है करके. बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी नो दिस, एंड इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू हाउ मेनी? 2 डॉटर न्यूक्लियाई, 2 इक्वल साइज्ड डॉटर सेल्स. सॉरी नॉट न्यूक्लियाई, 2 डॉटर सेल्स. ओके, 2 डॉटर. बाइनरी मतलब ही, बाइनरी के नाम में ही क्या है? बाइनरी मतलब 2 डॉटर सेल्स. याद रखो ये होता है. एग्जाम्पल अमीबा सेम है, मैंने इधर थोड़ा अच्छे से दिखाया फिगर एंड ऑल. अमीबा इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस. द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2. फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इधर देखो मैंने स्टेप्स दिखाया इधर. पेरेंट अमीबा विथ अ सिंगल न्यूक्लियस स्टार्टिंग में. नेक्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स, क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इधर दिख रहा है ना इधर. नेक्स्ट क्या होता है? साइटोप्लाज्म स्टार्ट्स डिवाइडिंग बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई. इधर फाइनली न्यूक्लियस कट हो गए और ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए ट्राई कर रहा है. साइटोप्लाज्म डिवाइड्स कंप्लीटली, देखो इधर ऐसे डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म, एंड फाइनली 2 डॉटर अमीबा ईच विथ 1 न्यूक्लियाई. एक न्यूक्लियाई इसमें गया, एक न्यूक्लियाई इसमें गया, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड. 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, रिमेंबर दिस. ये है तुम्हारा इम्पॉर्टेंट फिगर. ये फिगर याद रखना है तुम लोगों को. बाइनरी फिशन के लिए क्या होता है? अ सिंगल सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. याद रखो ये वाला. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैंने इधर दिया, सेम थिंग है. पेरेंट अमीबा इट ग्रोस एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स. जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा साइटोप्लाज्म विल स्टार्ट टू डिवाइड. जैसे देयर विल एंड द क्लीवेज अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द सेल. क्लीवेज मतलब कटिंग, कंस्ट्रिक्शन. ओके, जो ब्रेकिंग डाउन बोल सकते हैं हम लोग. क्लीवेज मतलब ब्रेक. फाइनली द साइटोप्लाज्म सेपरेट्स कंप्लीटली एंड 2 डॉटर अमीबा आर फॉर्म्ड एंड ईच डॉटर सेल्स इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल. जैसे हमने पेरेंट सेल लिया था, सेम आइडेंटिकल रेप्लिका डुप्लीकेट कॉपी डॉटर सेल रहता है. याद रखो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में. नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, नेम द टाइप ऑफ फिशन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स. 2 डॉटर सेल्स मतलब बाइनरी फिशन. मोर देन 2 मतलब मैनी मतलब मल्टीपल फिशन. ओके, सेपरेटली मैंने इधर लिया है, देखो मल्टीपल फिशन. इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वापस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स. क्या है? इनटू मैनी डॉटर सेल्स. उसमें बाइनरी मतलब 2 था, इसमें मैनी है, एंड दिस इज कॉल्ड फिजन प्रोडक्ट्स. दे आर कॉल्ड एज फिजन प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली. एग्जाम्पल देखो, ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? प्लास्मोडियम. इंपॉर्टेंट है, याद रखो. इट कॉजेस मलेरिया इन द ह्यूमन्स. इट इज़ अ प्रोटोजोआ. क्या है? इस कौन से कैटेगरी में आता है ये? इट इज़ अ प्रोटोजोआ. याद रखो. ओके, मल्टीपल फिजन्स इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस. क्या होता है? प्रोसेस क्या है? देखो फिगर में देखो,
प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर होता है द ह्यूमन बॉडी थ्रू बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। एक मॉस्किटो बाइट के वजह से ये जो पैरासाइट है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है। सो इन द ह्यूमन बॉडी इट लिव्स इन द लीवर सेल्स। ज़्यादातर किधर फॉर्म्ड रहते हैं? इन द लीवर सेल्स। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो organism which is present in the liver cells it causes some disease in the human beings। ओके ऐसे करके घुमा फिरा के तुम्हें वो प्लाज्मोडियम तक ही लेके जाएंगे, वो नाम नहीं बोलेंगे कि प्लाज्मोडियम है करके। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है करके। ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करोगे तब जाके तुम्हें उसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। पता चला? सो दिस दे what plasmodium they live in the liver cells and when conditions become unfavorable, एक ऐसा टाइम आता है कि बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स रिपीटेडली मैनी टाइम्स। ये जो न्यूक्लियस है देखो इधर दिख रहा है ना, ये क्या होता है? डिवाइड होता है बार बार, मैनी टाइम्स, रिपीटेडली डिवाइड होता है। एंड द साइटोप्लाज्म ऑल्सो स्टार्ट्स डिवाइडिंग। जैसे एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म भी क्या होता है? डिवाइड होने स्टार्ट होता है। एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स अराउंड ईच न्यूक्लियस एंड मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इधर देखो मैनी डॉटर सेल्स, छोटे छोटे इधर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पेरेंट सेल एंड द पेरेंट सेल देन ब्रेक्स। ये जो पेरेंट सेल है इधर से ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब इधर देखो इस तरफ ब्रेक होके ये बाहर निकल के आते हैं डॉटर सेल्स एंड इट रप्चर्स एंड रिलीजेस द daughter cells. So these daughter cells they grow and they infect the new cells। जो फाइनली तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नए सेल्स रहते हैं, अच्छे सेल्स रहते हैं, इसको भी खराब कर देते हैं ये। ओके ये डॉटर सेल्स ग्रो होके इन्फेक्ट कर देते हैं। खराब मतलब क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं एंड कंटिन्यू द लाइफ साइकिल। तो इसके वजह से तुम्हें मलेरिया है करके डिटेक्ट हो जाता है ब्लड टेस्ट में। सभी समझ में आया? ये है प्लाज्मोडियम, दैट इज मल्टीपल फिजन होता है इसके अंदर। एंड दिस इम्पॉर्टेंस क्या है देखो, इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इट्स नंबर रैपिडली मल्टीपल फिजन में। इट इज़ कॉमन इन प्रोटोजोआ लाइक प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल एंड हेल्प्स इन सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो। नेक्स्ट दूसरे टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल में बर्डिंग। बर्डिंग हमारे दो ऑर्गेनिजम्स में होता है, हाइड्रा एंड ईस्ट है। Okay, budding is a type of asexual reproduction in which new individual that is bud, new individual को हम लोग क्या बोलते हैं इधर? bud करके बोलते हैं। It develops from outer growth that is small projection on the small projection on the body of the parent organism। याद रखो बर्डिंग क्या है? एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेयर अ बर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम द आउटर ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये बर्ड कट होके नीचे गिर के दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है वापस। ओके एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है फिगर में, हाइड्रा एंड दूसरा होता है ईस्ट। हाइड्रा के केस में देखो फिगर देखो मैंने इधर दिया है, इम्पॉर्टेंट है, फिगर भी पूछ सकते हैं इधर। बर्डिंग ईस्ट के केस में भी मैंने फिगर दिया है। सो हाइड्रा के केस में इज़ अ सिंपल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट याद रखो कि हाइड्रा क्या है करके, हाइड्रा इज़ अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इट शोज सम टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिगर दे सकते हैं, तुम्हें फिगर से पता लगाना पड़ेगा वो हाइड्रा है करके, तो फिगर इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सो अ स्मॉल आउटर ग्रोथ विच इज कॉल्ड एज बड अपीयर्स ऑन द बॉडी। इधर दिख रहा है ना बड, ये स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में इधर बड दिख रहा है, हियर इधर बड दिख रहा है नीचे। एंड इट डेवलप्स माउथ एंड टेंटेकल्स। जैसे ये ग्रो होगा इसके अंदर देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, इसके साथ इसके पास भी माउथ एंड टेंटेकल्स आ जाएगा। इसको टेंटेकल्स बोलते हैं, ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके
they are called as tentacles. And finally the bird detaches from the parent and becomes a new individual. ये separately finally नीचे गिरता है और दूसरा डिटैच मतलब सेपरेट होता है. डिटैच मीन्स क्या है? सेपरेट होता है. ये सेपरेट होके न्यू पेरेंट या न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, सेम लाइक टू योर पेरेंट ऑर्गेनिज्म. समझ में आया? ये है हाइड्रा के केस में. वो फिगर जो दिख रहा है तुम्हें हाइड्रा का है. नेक्स्ट ईस्ट का फिगर ये वाला है, सेम अलग है. देखो, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस. ईस्ट क्या है? टाइप ऑफ फंगस विच इज़ यूज्ड इन बेकिंग एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑल्सो. केक बेकिंग में सभी हम लोग फर्मेंटेशन के केस में हम लोग यूज़ करते हैं. किधर? फर्मेंटेशन. ओके, डोसा बैटर, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के केस में यूज़ करते हैं. डोसा बैटर, केक, इसमें इडली, ऑल दिस थिंग्स यू यूज़ दिस ईस्ट पाउडर मिलता है इसका. ओके, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. सो it is also used in the production of alcohol as well. A small bud appears on the surface of the parent cell. इधर दिख रहा है ना, ये स्टेप में इधर क्या हो रहा है? एक छोटा सा बड अपीयर होता है ऊपर. किधर भी हो सकता है, मैंने ऊपर दिखाया. ओके, एंड द बड ग्रोस लार्जर. इधर देखो, ये बड ग्रोस लार्जर एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स. ये न्यूक्लियस डिवाइड होके बड क्या होता है? फाइनली डिटैच होता है, कट होता है, एंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू ईस्ट सेल इज फॉर्म्ड. ये क्या है तुम्हारा? न्यू ईस्ट सेल फॉर्म हो जाता है डिटैच होके. समझ में आया? ये था तुम्हारा हाइड्रा और ईस्ट के केस में. असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इसको बडिंग. क्या बोलते हैं? बडिंग. इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट. इट इज कॉमन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट. ओके, एंड द ऑफस्प्रिंग्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स ही ऑफस्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट सेल से. नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, नेम द ऑर्गेनिज्म. हाँ देखो, इधर फिगर दिया है, यू हैव टू नेम द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. वो कौन सा है तुम्हारा? हाइड्रा. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन इट. तो तुम्हें वो ऊपर जो मैंने प्रोसेस दिया है वो प्रोसेस वो ड्रॉ करना है. समझ में आया? टेंटेकल्स, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड बॉडी, बेसल डिस्क, वो सभी दिया है तुम्हें. आंसर ऑल्सो आई हैव गिवन. ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को वो लोग थोड़ा केस स्टडी, स्टोरी टाइप ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, उतना ही. ओके, ऑल्सो I will do many case study question from each chapter. You can just go through my video links as well. Okay, YouTube चैनल देखो, प्लेलिस्ट बनाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी क्वेश्चन फॉर यूर बोर्ड्स, दैट इज 2026-2027 बोर्ड. ओके, 2027 बोर्ड एग्जाम्स. जस्ट गो थ्रू दैट. मैं उधर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, मेनली केस स्टडी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड MCQ क्वेश्चन. सो please do watch all the videos from that playlist. Okay, and do subscribe to my channel for more number of questions, for more revision, more type of case study question and all. Class Excellence, do subscribe to Class Excellence. See, next coming to another type of asexual reproduction, that is fragmentation. What is fragmentation? देखो, it is again a type of asexual reproduction in which the body of an organism breaks into fragments. क्या होता है? बॉडी किस में ब्रेक होता है? It breaks into 2 or more fragments. क्या बोलते हैं इस केस में? फ्रैगमेंट्स बोलते हैं. समझ में आया? मेनली तुम्हारा होता है स्पाइरोगायरा में. किधर होता है ये? स्पाइरोगायरा, याद रखो, दिया है मैंने इधर ऑर्गेनिज्म. एंड ईच फ्रैगमेंट अगेन इट ग्रोज टू अ न्यू इंडिविजुअल. वो न्यू इंडिविजुअल से और फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होते हैं. ये होता है मेनली फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस. तो तुम्हारा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा. किधर होता है? स्पाइरोगायरा में. फिगर मैंने इधर दिया है, देखो,
Spirogyra, it is nothing but a green algae which is found in the fresh water. Okay, green algae जो तुम्हें fresh water में दिखता है ना, वो देखो छोटा सा रहता है वो water में, बाद में जो है वो spread होते जाता है full पानी में, green color, उसको Spirogyra बोलते हैं. It's a long thread like filament which break into pieces and these pieces are called as fragments. ये क्या है, ये pieces को क्या बोलते हैं हम लोग, fragments बोलते हैं. इधर देखो ये ब्रेक हुआ है, देखो इधर से ऐसे ब्रेक होता है. ओके, ये ब्रेक होता है इधर, ये फ्रैगमेंट्स बोलते हैं. एंड दिस ईच फ्रैगमेंट इट डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट और फ्रैगमेंट दिस स्पाइरोगायरा अंडर फेवरेबल कंडीशन. ये फाइनली ये नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ है इधर से, समझ में आया. ईच फ्रैगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू फिलामेंट एंड दिस कॉमन इन फिलामेंटस algae स्पाइरोगायरा. फिलामेंटस algae बोलते हैं इसको. ओके, फ्रेश वाटर में रहते हैं. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अगेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो मैंने इधर फ्लो चार्ट में भी दिखा है, फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा रहता है, वो फिलामेंट क्या होता है, ब्रेक होता है इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स एंड दिस ईच फ्रैगमेंट्स दे रिमेन अलाइव इन फेवरेबल conditions and finally each fragment grows into a new individual or new filament and this new filament becomes a individual, new individual. समझ में आया. नेक्स्ट आते हैं रीजेनरेशन. रीजेनरेशन क्या होता है, देखो रीजेनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो. क्या होता है इसमें, ऑर्गेनिज्म टू रीग्रो एंड रिप्लेस द लॉस्ट और द डैमेज्ड बॉडी parts. The lost body part is regenerated and new complete organism is formed from that small part. Okay, damaged or lost part. It is a type of asexual reproduction again and new individual develops from the regenerated parts and is seen in simple multicellular organism. ज़्यादातर एक इधर दिखता है multicellular में, वो unicellular थे सारे. and it like planaria and hydra. ये याद रखो, where planaria और हाइड्रा इसमें दिखता है. कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजेनरेशन. ये ऑर्गेनिजम्स याद रखो, हर एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में. समझ में आया. प्लानेरिया एंड हाइड्रा के केस में क्या दिखता है, रीजेनरेशन दिखता है. ओके, तो रीजेनरेशन इन प्लानेरिया इधर दिखाया है, देखो मैंने. क्या होता है, प्लानेरिया मतलब एक फ्लैट वर्म है. क्या है, इट इज़ अ फ्लैट वर्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. क्या ये, मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इफ अ प्लानेरिया इज कट इनटू 2 और मोर पीसेस, इधर देखो ये कट हुआ है, इधर से 2 और मोर पीसेस में कट हुआ है, तो ईच पीस रीजेनरेट्स द मिसिंग पार्ट्स. हर अभी सपोज ये सिर्फ इतना बचा है, सिर्फ इतना बचा है और ये इधर ऊपर का पीस बचा है. ओके, तो ये पीस को क्या आएगा, इधर नीचे का टेल पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इधर ऑटोमेटिकली टेल पार्ट आ जाएगा और नीचे वाले पार्ट को ये ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ये पार्ट आ जाएगा. समझ में आया. इट रीजेनरेट्स द मिसिंग पार्ट. जो पार्ट नहीं है वो पार्ट क्या होता है, रीजेनरेट होता है एंड इट फॉर्म्स अ न्यू प्लानेरिया. फाइनली ये दोनों ज्वाइन होते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट ज्वाइन होके क्या होता है, इधर न्यू पार्ट फॉर्म होता है. समझ में आया. रीजेनरेशन मतलब दैट इज रीजेनरेट्स द मिसिंग पार्ट. मिसिंग पार्ट उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रीजेनरेट हो जाएगा एंड अ न्यू प्लानेरिया और न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड. याद रखो, ये है रीजेनरेशन प्रोसेस बोलते हैं. सिमिलर केस में हाइड्रा में ऐसे ही होता है. देखो, हाइड्रा कैन ऑल्सो रीजेनरेट इट्स बॉडी पार्ट. अगर एक पार्ट कट हुआ है, ये कट हुआ है करके समझो, सपोज ये कट हुआ है करके सोचो, तो इसके अंदर ये वापस आ जाता है और नीचे वाले के अंदर ऊपर वाला पार्ट आ जाता है. फाइनली न्यू हाइड्रास, 2 न्यू हाइड्रास आर फॉर्म्ड. समझ में आया. ये है रीजेनरेशन. डिफरेंस क्या है, देखो रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स क्वेश्चन में.
तो इधर 2 मार्क्स के लिए पूछा है तो यू शुड राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। ओके, मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखना चाहिए। अगर तुम्हें फुल पता है 4 पॉइंट्स तो ये फुल लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, बट मिनिमम 3 पॉइंट्स। 2 मतलब 2 मार्क्स का है, मतलब 2 पॉइंट्स लिख के मत आना। रीजेनरेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बॉडी पार्ट इन विच सम सेल्स रीग्रो द मिसिंग पार्ट्स। रीजेनरेट ऑफ मिसिंग पार्ट्स होता है। whereas फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉडी, एक ब्रेक करने का बॉडी को इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स और फिलामेंट, एंड ईच फिलामेंट दिस ग्रोस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ये फ्रैगमेंटेशन है। बट दोनों क्या है? असेक्सुअल है। बोथ आर, सिमिलैरिटी क्या है इसमें? बोथ आर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नेचर ऑफ प्रोसेस वाइज देखेंगे तो रीग्रोथ ऑफ लॉस्ट और डैमेज्ड पार्ट्स, whereas फ्रैगमेंटेशन में सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी इनटू पीसेस विच आर कॉल्ड एज फ्रैगमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इधर दिया है मैंने, किधर किधर दिखता है? प्लानेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश में क्या होता है? रीजेनरेशन दिखता है। क्या दिखता है? रीजेनरेशन। स्पीसीज को थोड़ा याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्पीसीज। नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, याद रखो क्या है? स्पाइरोगायरा। अकरेंस इधर किधर? मेनली रीजेनरेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, whereas fragmentation it occurs commonly in common organisms और simple organisms like algae। किधर दिखता है? algae जैसे ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। समझ में आया? स्पाइरोगायरा, ग्रीन algae present in the fresh water। Okay, this was the difference between regeneration and fragmentation। नेक्स्ट आते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और एक एग्जाम्पल में स्पोर फॉर्मेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। किधर किधर दिखता है? राइजोपस, म्यूकर एक्सेट्रा इधर। ओके, राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, याद रखो, सेम है ब्रेड मोल्ड। राइजोपस क्या है? देखो, इट इज़ अ फंगस कॉमनली फाउंड ऑन स्टेल ब्रेड। ओके, जो खराब होता है ना ब्रेड, तुम लोग घर के अंदर जब ब्रेड लाते हो खाने के लिए, तो बाई चांस उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, तो जब तुम लोग उसको रखते हो ऊपर फंगस आ जाता है, वो फंगस ही क्या है? राइजोपस है। दैट फंगस इज नथिंग बट व्हाट? इट इज़ राइजोपस। व्हाट इट इज़? राइजोपस, या ब्रेड मोल्ड बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड करके बोलते हैं। समझ में आया? इधर मैंने डायग्राम दिखाया है, देखो हियर। राइजोपस इज अ फंगस एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। स्पोर्स से स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज इनसाइड अ स्पोरेंजियम। ये इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या रहता है? पोर्स रहता है इधर। ओके, ये स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं इधर। ये जो फिलामेंट जैसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको स्पोरेंजियोफोर या स्टॉक बोलते हैं। समझ में आया? एंड दीज रूट्स लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। सो स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट द टिप्स ऑफ द अपराइट स्टॉक्स कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोर्स। ओके, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं इसको। इधर ऊपर ये स्ट्रक्चर में, राउंड लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहता है तुम्हारा? स्पोरेंजियम रहता है, स्पोरेंजिया बोलते हैं। एंड मैनी स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम व्हेन द स्पोरेंजियम बर्स्ट। ये जब स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, समझ में आया? देखो ऐसे होता है, इसके ऐसे रहता है, इसके अंदर ये स्पोरेंजियम रहता है। ये जब ऐसे ब्रेक होता है, बर्स्ट होता है, द स्पोर्स आर रिलीज्ड। ये क्या होता है? जैसे ब्रेक होगा, ऐसे कट होगा, इधर से बाहर क्या निकल के जाते हैं? स्पोरेंजियम निकल के बाहर जाते हैं। दे आर रिलीज्ड आउटसाइड। सो स्पोर्स जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशंस एंड दे फॉर्म राइजोपस। ये स्पोर्स क्या होते हैं? ग्रो होते हैं थोड़े फेवरेबल कंडीशंस में, एंड फाइनली दे फॉर्म अ राइजोपस। एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो रातों रात वो फुल ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाता है, छोटा सा फंगस फुल स्प्रेड होके एक ही दिन में पूरा खराब हो जाता है। देखा होगा ना तुमने, ऑब्जर्व किया रहेगा।
तो ये फास्ट होता है, रैपिड प्रोसेस है. एंड दिस स्पोर्स आर लाइट एंड कैन बी इजीली कैरीड बाय विंड ऑल्सो. एंड स्पोर्स हैव थिक वॉल्स एंड कैन सर्वाइव इन unfavorable conditions as well and helps in rapid multiplication. ओके ये है तुम्हारा एक क्वेश्चन स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ राइजोपोर्स, ऊपर जो मैंने दिया है राइजोपस का, एंड एक्सप्लेन द स्पोर फॉर्मेशन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. या फिर और नेम द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन. कौन सा है? राइजोपस है. ओके एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम. सेम है, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा उधर से. बैक जस्ट रिवाइंड करके देख लो. ओके एक बार, या स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. डेफिनेशन वाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगेन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है ये? Type of asexual reproduction in plants, okay, in which new plants are produced from the vegetative parts. किससे produce होते हैं new plants? By vegetative parts. They are new individuals are produced by vegetative parts. Vegetative parts like root, stem और लीफ. समझ में आया? रूट, स्टेम या लीफ. वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? रूट, स्टेम या लीफ है. ये तीनों तुम्हारे वेजिटेटिव पार्ट्स रहते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वजह से इधर ऐसे न्यू प्लांट फॉर्म होते हैं. सो इम्पॉर्टेंस क्या है देखो, हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, दिखाते हैं. एंड न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो टिपिकली क्या रहते हैं? आइडेंटिकल, सेम कार्बन कॉपी रहते हैं टू द पेरेंट प्लांट. एंड इट प्रिजर्व्स द डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट. इट हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना, ग्रेप्स, शुगर केन एक्सेट्रा. ये मेनली इस केस में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं. ओके एंड इज़ यूजफुल फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेल. याद रखो. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स. सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. 2 टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहता है. समझ में आया? एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या है देखो, इट अकर्स नेचुरली इन द प्लांट्स विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प. देयर इज नो हेल्प ऑफ ह्यूमन एट ऑल एंड इट कैन अकर थ्रू डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट और लीफ. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है देखो, डिटेल में आगे और समझेंगे. नोट्स में मैंने इंक्लूड किया है, जस्ट इधर दिखाती हुई टेबल का डिफरेंस. सो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन बाय ह्यूमंस. ये कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड इज यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स इन अ कंट्रोल्ड वे. क्या है? यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स इन अ कंट्रोल्ड वे. समझ में आया? ये है तुम्हारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन व आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरली विदाउट एनी हेल्प होता है, आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट आते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट इज न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. क्या फॉर्म नहीं होता है? without the formation of seeds. Okay, it occurs in stem, रूट एंड लीफ. तीनों केस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इधर देखो, स्टेम. न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्टेम्स सच एज रनर्स, राइजोम्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड कॉर्न्स. ओके, ट्यूबर्स तुम्हारा होता है पोटैटो के केस में. इधर दिया है देखो एग्जाम्पल, ट्यूबर पोटैटो. राइजोम जिंजर होता है, बल्ब ऑनियन होता है, रनर इट इज़ इन स्ट्रॉबेरी केस एंड कॉर्न इट इज़ इन कोलोकेशिया पार्ट. ओके, सो रूट में क्या है देखो, न्यू प्लांट्स दे अराइज फ्रॉम एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स. एग्जाम्पल होता है तुम्हारा स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया फ्लावर. नेक्स्ट आता है लीफ. लीफ दैट इज न्यू प्लांट्स दे ग्रो फ्रॉम बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स. ओके, अगर ये ऐसे
लीफ है तो इधर ये लीफ में इधर बर्ड प्रेजेंट रहते हैं, इसको इधर क्या होता है न्यू प्लांट फॉर्म हो जाते हैं, कट करने से इधर छोटे से इसमें न्यू प्लांट फॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। ओके, ब्रायोफाइलम मतलब ऐसे ब्रह्म कमल बोलते हैं नॉर्मली हम लोग, वो एक्चुअल नहीं है, तो वो ये ब्रायोफाइलम है। इधर देखो ब्रायोफाइलम, ये लीफ से ही क्या होता है, इधर ऐसे छोटे छोटे इधर न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं हर एक पॉइंट में। समझ में आया? सो एग्जाम्पल देखो, ट्यूबर इन पोटैटो, राइजोम इन जिंजर, न्यू प्लांट्स किधर कैसे फॉर्म हुआ है इधर दिखाया है, देखो मैंने। ऑनियन बल्ब इधर ऊपर दिखाया है, स्ट्रॉबेरी रनर है सेम ऊपर दिखाया है, कोलोकेशिया है। ओके, here this is seen in tuberous roots also in from roots case and begonia, ये प्लांट में दिखता है सेम। ये था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं की पॉइंट्स देखो। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट only one parent is involved. Offsprings are genetically identical to the parent and is common in mainly plants. Okay, this helps in rapid increase of plants, is useful in maintaining desirable characters, used in agriculture and हॉर्टिकल्चर में। किधर यूज़ करते हैं? इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। देखो ये क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। ह्यूमन से होता है, ये आर्टिफिशियली होता है। समझ में आया? न्यू plants is produced from the vegetative parts by human efforts in a controlled way। controlled way में हम लोग इसको grow कर सकते हैं। methods of artificial propagation, cutting, layering, grafting, tissue culture, ये चारों इसमें आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में। समझ में आया? कटिंग क्या है देखो, पीस ऑफ स्टेम और रूट और लीफ इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एक स्टेम या रूट कट करते हैं एंड इट इज़ ग्रोन इन सुटेबल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में इसको सेट करके हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। लेयरिंग क्या है, lowermost branch of the plant is bent down and covered with soil. After rooting it is separated from the parent plant। याद रखो। ग्राफ्टिंग भी ऐसे ही है, the shoot of one plant is joined with the root part of another plant of the same species। Okay, next is tissue culture, that is new plants are grown from the small piece of tissue in a sterile medium layer called as controlled conditions, under controlled conditions। याद रखो। ये स्टेप्स भी मैंने दिया है देखो, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर का इधर स्टेप्स भी दिया है। उतना डिटेल में उतना भी नहीं है तुम लोगों को। ओके, 10th स्टैंडर्ड में जस्ट इफ़ यू वांट जस्ट गो थ्रू दिस, क्या है कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर क्या है करके विथ एग्जाम्पल्स दिया है। देखो कटिंग होता है तुम्हारा रोज़, बोगनविला, शुगर केन, हाइबिस्कस के केस में। वायरस तुम्हारा लेयरिंग होता है जैस्मिन, बोगनविला, गुआवा एंड लेमन के केस में। ग्राफ्टिंग होता है मैंगो, एप्पल, रोज़, सिट्रस फ्रूट्स, इसमें ये ग्राफ्टिंग होता है इधर। ओके, क्या होता है ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट आता है टिश्यू कल्चर इन केस ऑफ बनाना, जिधर सीड्स नहीं है, ऑर्किड्स, शुगर केन, पोटैटो, इसमें होता है। समझ में आया? इधर से हम लोग न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो करते हैं। एडवांटेजेस क्या है देखो इसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, का एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर हेल्दी एंड डिजीज फ्री एंड इट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। मेनली किधर होता है, मेनली इट इज़ यूजफुल वेयर द प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। सीड विदाउट सीड्स जो रहते हैं ना, जैसे कि बनाना
ओके एंड ऑल, उसमें ज़्यादातर टिश्यू कल्चर दैट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं हम लोग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्विक मल्टीप्लिकेशन, याद रखो. ओके, सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने दिया है. देखो, एडवांटेजेस वाइज देखेंगे तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड दिस पॉसेस ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट का ही सेम कैरेक्टर्स जो भी है फीचर्स है उसमें आ जाएगा एंड इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग डिजायरेबल क्वालिटीज. It is a quick method. Plants mature early and they start producing earlier. Okay, एक क्विक मेथड है, इसके वजह से प्लांट्स क्या होते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं. जल्दी मैच्योर होने के कारण क्या होता है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग द अर्लियर वन एंड डज नॉट रिक्वायर फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स. कैन बी डन इन एनी सीजन, कौन से भी सीजन में कर सकते हो तुम लोग. एंड इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स. ज़्यादातर किस में हेल्प करता है ये, सीडलेस फ्रूट्स, जैसे कि बनाना एंड ऑल रहते हैं, ऑरेंज. ओके, उस केस में हम लोग ये करते हैं. इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एज वेल. नेक्स्ट हम लोग डिसएडवांटेज में देखते हैं. एज based on offspring there is a lack of variation and all offspring are exact copies of parent, याद रखो. and if the parent has any disease it will transfer to the offspring. कुछ भी disease है तो क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है. एंड इट डज नॉट अलाउ न्यू वेरिएशंस टू डेवलप इन द स्पीसीज एंड ऑल्सो हार्मफुल चेंजेस इन पेरेंट प्लांट आर ऑल्सो पास टू द ऑफस्प्रिंग. याद रखो, कुछ भी इधर डिजीज़ या कुछ भी हार्मफुल चेंजेस रहेगा तो वो ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा. कुछ एक क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट है. अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन आजकल जो पूछ रहे. सो लिस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिया है. लिस्ट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. यू कैन जस्ट रेफर दिस टेबल एंड यू कैन राइट द आंसर. मैंने उधर आंसर भी मेंशन किया है. ओके, इफ़ यू वांट जस्ट गो थ्रू दैट आंसर एज वेल. That is, this is our asexual reproduction topic. समझ में आया, ये था इतना asexual reproduction में. जस्ट कंप्लीट वॉक थ्रू करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा है करके. asexual reproduction मतलब एक टाइप ऑफ reproduction है where a single parent is involved and the offspring they are produced without the formation of the fusion of gametes. कुछ फ्यूजन नहीं होता है. ओके, एंड जो offspring प्रोड्यूस होते हैं they are the duplicate copy या identical copies of their parents. याद रखो फर्स्ट. एंड इट इज़ अ रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. फास्ट होता है, टू रैपिड मेथड. ओके, जल्दी हमें ऑफस्प्रिंग्स मिल जाते हैं. तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने देखा, फिजन देखा, फिजन अमीबा, प्लाज्मोडियम. अमीबा के केस में बाइनरी फिजन होता है. प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है. ओके, प्रोटोजोआ विच कॉजेस मलेरिया, प्लाज्मोडियम. इसके केस में मल्टीपल फिजन होता है. बडिंग देखा हमने, बडिंग इन हाइड्रा, इन ईस्ट. फ्रैगमेंटेशन देखा इन स्पाइरोगायरा, ग्रीन अलगे इन फ्रेश वाटर. रीजेनरेशन देखा हमने इन प्लानेरिया एंड हाइड्रा. स्पोर फॉर्मेशन देखा हमने इन राइजोपस. ओके, ब्रेड मोल्ड. एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी देखा हमने इन मेनली इन सीडलेस प्लांट्स. ओके, दैट इज़ बनाना. एंड पोटैटो के केस में ब्रायोफाइलम, शुगर केन. इस केस में दैट इज़ फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, बड. ओके, या लीफ होते हैं, उधर से न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड. याद रखो, ये था हमारा असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज़ अ क्विक रिविजन हियर. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट. समझ में आया? तो इसके बेस्ड पे कुछ भी केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के, इंडिविजुअल्स को लेकर या ऑर्गेनिजम्स बता के वो लोग या डायग्राम दे के तुम्हें कुछ भी ऐसे क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन पूछेंगे तो यू कैन आंसर इट ईजीली. So this was a part of asexual reproduction of lecture 1. That is how do organisms reproduce. I will just bring a new video of lecture 2 where I will just say
make you understand the detailed concepts like sexual reproduction in plants, flowering plants, as well as sexual reproduction in humans also. Okay, so just follow Class Excellence, subscribe to Class Excellence, and do watch my next video as well. The link of the video will be provided in the description. Please do continue watching the playlist, that is all the chapter explanation along with the notes, and also I have made a separate playlist for MCQ question, case study question, and important previous year question with for your CBSE board exams 2026 to 2027. Okay, thank you.